मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, जस्ट गिव मी 1 minute. जी, so let's begin. Everyone can see my slide over here. Yes, we can see your slide. Okay, thank you so much. So, thank you for having me here. I'm deeply grateful to Education Unlimited to giving me this chance to have a little time for discussion with all of the participants. And I believe that the moral theories have already been started. You can use the chat box. You can put on your mics, whatever feel comfortable with you. Can anyone tell me what have you covered in moral theories up till now? Anyone? I can call in the names, then I can see the participants. Dr. Han, would you like to volunteer? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, इट्स मी डॉक्टर सना वालेकुम हियर। अस्सलाम। जी जी डॉक्टर सना। जी मैडम, हमने अभी डियोंटोलॉजी के बारे में बात की है और वर्च्यू एथिक्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में, और यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा टच किया था अपनी फर्स्ट लेक्चर में। और इसके ओके, बारे में हमारी नॉलेज थोड़ी ये है कि ज़्यादा लोगों के लिए जितने फ़ायदे हो सकें और मोर गुड फॉर द मोर नंबर ऑफ पीपल। परफेक्ट परफेक्ट सना, दैट्स एक्सीलेंट। यानी कि बेस तो एक थोड़ी सी बन गई है, इसको अब आज इंशाल्लाह बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जो मॉडल थ्योरी की डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले तो आई नीड यू ऑल टू टेल मी व्हाट इज एक्चुअली हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या होती है? सिंपल सा वर्ड है। व्हाट इज हैप्पीनेस? Joy. Yes. Thank you, Munib. Joy is happiness. ये हम बचपन से नहीं सुनते आ रहे, मुझे खुशी नहीं हो रही, मैं खुश नहीं हूं। हमारे बच्चे भी हमें कहते हैं, दिस इज सो सो कॉमन। मगर हमने कभी सोचा है व्हाट एक्चुअली इज हैप्पीनेस? Satisfaction. Yes. Excellent, Dr. Sandeep. When you are satisfied, you would feel happy. That's a good way of putting it. Chalo, joy, fulfilling your demands. Okay, you feel happy when your demands are fulfilled. Then you feel happy. और जिसका डॉक्टर संदीप ने भी कहा, सेटिस्फैक्शन भी तभी आती है आपको। सही। वी ऑल नो दैट साइंटिफिकली हैप्पीनेस का केमिकल क्या है हमारा? वी ऑल नो दैट ना? यस, serotonin. Feeling of satisfaction when something is achieved. Excellent. That's good. अब हम जरा करीब करीब आ रहे हैं कि having something achieved, sense of achievement, fulfillment of demands, feeling of satisfaction, serotonin being released, serotonin short acting, so short acting, short time happiness, so that is over there as well. So overall, आप सब सारी बात करें, endorphins, very good. So happiness actually defined कैसे होती है? It is an enduring state of mind consisting not only of joy, contentment, satisfaction, and other positive emotions, but also a sense of one's life is meaningful and valued. Once you feel valued, you will be satisfied, contented,
you would have joy, and you would have that sense of happiness. तो ये इनकी एक बड़ी उसकी डेफिनेशन थी. सो अभी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. What makes you happy? या what is happiness to you? You can go to Mentimeter and you can, I will put in the click link over here for you guys, or you can use this QR code to go over there and just fill in over here. Let's brainstorm our own self for 3 minutes और वहां पे जाके फिर हम ब्रेक करते हैं कि सबकी हैप्पीनेस के देखने का नजरिया क्या है. What is happiness to you? आप कैसे अपने आप को देखेंगे? और what does it mean to you? So link I have shared in the chat box. Please, you can go over there. Alternatively, you can put in the code 6580547 chat box में share है. ये भी आप menti.com में जाके कर सकते हैं. So we already have entries over here. I'm going to share it with you all so that you can all see. जी, ठीक. You can see my screen now, full screen. So here we have happiness. No disturbance is what makes you happy. That is a good thing as well. मगर एक monotony आ जाएगी फिर. अच्छा ठीक है. Joy, free from problems, peace, demand. Okay, or what else? Traveling makes you happy. ठीक. सही. Holiday makes you happy. Holiday अगर लंबी हो जाए तो will we still be happy? Question ये आता है. Gifts make you happy. Joy, demand, surprises make you, surprises of any kind. That's interesting. When I am acknowledged, when I achieve something. Satisfaction, no peace. Okay, that's an excellent 15 responses. थोड़ा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और लेट्स सी अगर कोई हमें और ऐड ऑन करता है कि नहीं. पीस सबसे बड़ा आ रहा है. There are 5 participants in this working on the screen. So think about the fact that if you have salary day, okay, good facts, okay, promotion makes you happy. Excellent. अगर आपके मुस्कान को बुलाना है तो ऐसे मत बुलाएं. मुस्कान. So Dr. Khurram, your mic was on. When I'm acknowledged, when I'm at peace, makes you happy, and happiness makes you happy. Interesting. So this is a nice 18 salary day. सारे हो गए, I think. Demand, excellent. So there are some people who are going for salary day, promotion, when your needs are being fulfilled. There are some people who are happy when they are valued or acknowledged. And there are some people who say when I achieve something, अपने ही self set किए गए goal को achieve किया तो वो अपनी internal एक happiness होती है. Free from problems, demand, gifts. ठीक है, सही है. Excellent, excellent. Thank you everyone. Thank you for your wonderful contribution. And we are going to move ahead. So light shading on and 3 minutes में हमने देख लिया. Actually होता क्या है? Studies have shown that there are different levels of happiness.
थोड़ी सी आपकी रफ एक्सरसाइज थी, इतना ज्यादा टाइम नहीं था, वरना ये तो एक बहुत लंबी और हम इसको अराउंड 10-15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग विद वेरियस क्वेश्चनेयर टू फिल हम इसको देते हैं, सो दैट participants can identify where their happiness level is. Maslow's hierarchy of need किन किन को पता है? Maslow's hierarchy of need. Anyone know about this? Maslow's hierarchy of need. This is a आप अभी सर्च कर लो साथ, अभी साथ साथ सर्च कर लो. Maslow's hierarchy of need basically show कराता है your level of contentment. Start आपका होता है with the basic survival like food, water, safety, security, shelter. जब आपका ये पूरा होता है, then you go on to making more connections and getting more spiritually involved and having that spiritual attainment in the end. So उसकी भी एक हायरार्की है, यहाँ पे भी एक हैप्पीनेस की हायरार्की है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्ट्रेस. यहाँ पे भी बेसिक सर्वाइवल है. यस, स्टार्ट फ्रॉम सेफ्टी एंड पीक टू एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपकी जो हैप्पीनेस होगी, स्टार्टअप होगा जिस तरह एक छोटे बच्चे का होता है, मीटिंग फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक वाटर, फूड, शेल्टर, टॉय, एनीथिंग लाइक दैट. उसके बाद कमोडिटीज की यूजेज आ जाती है कि यू आर सेटिस्फाइड बाय द यूज ऑफ द थिंग्स दैट यू ओन और द बेसिक गुड्स आपके पास है. Then you start having looking around and you start appreciating the world and you start having happiness by traveling, by looking into different buildings, having architecture, enjoying the nature, the designs and everything. उसके बाद आपकी आती social interaction से, and you enjoy the company of people and you like to participate and having different kinds of companionship. Fifth level पे आ जाती है physical satisfaction. You want your inner self, your body appearance and to be that good that makes you feel better. इसमें आपके sports आते हैं, आपका sexual desires आती हैं और other bodily pleasures आ जाते हैं. That is the physical satisfaction. But that is not even enough. You also look for emotional connections, and that is what many couples they look when they are getting married or making friendships and having deep bonds with other people. Individual level पे artistic enjoyment आ रही है. You have that level of हर एक अपना level है. Some find happiness even in listening to the sad ghazals, slow ghazals, and some find joy in the beat of the music and having visual arts. And finally, your intellectual pleasure, where you find enjoyment in complex problem solving, in complex critical thinking, in solving your cases, having the challenge to accept difficult cases even in your workplaces. That is the intellectual pleasure as well, involving yourself in different kind of researches and asking yourself different questions and answering through research or evidence base or whatever. That is the intellectual pleasure, and I'm sure we all can relate to this paradigm at the individual level. The thing is, when we talk about happiness, we are not alone. We are living in a society and we are dealing with people as well. So there was another aspect, happiness as a social and cultural context. Culturally आपका कैसे होता है? तो number one आपका जो happiness होता है, आपके happiness beliefs हैं, they are shaped by the cultural ideals या norms. आपके जितने बिलीव्स, इवन इसमें रिलीजन्स आती हैं, आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स आते हैं, उनके अगर आप फॉलो करेंगे और उनके मुताबिक भी चलेंगे, उनके रूल्स के मुताबिक चलेंगे, तो यू वुड फील हैप्पी. पर्सनल फुलफिलमेंट, ये हमने पहले पिछले में बहुत डिस्कस किया. Number 3 is the community bond. Here again, you are interacting and having bonds with other. Number 4 is the economic stability. जो बात की थी इधर प्रमोशन की बात की थी या इधर सैलरी मिलने की बात की थी, that is the economic stability among the group of the people which are equal to you, या which are at the equal level to you, and how stable they are and how stable you are. And we also talk about access to education, to your personal well-being, your personal growth and health and well-being, and finally work-life balance. This is important. And globally, different cultures, when we are interacting with diverse populations, different cultures, they offer diverse views on happiness. I hope यहाँ तक
सबको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, एंड यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ with different parts of the happiness domains in the individual as well as social construct. Yes, so please put a hands up या say yes or put on a Y. अगर नहीं समझ आया तो N लिख दें. Thank you Sana, thank you for being interactive. I need you all to be interactive क्योंकि इतनी हम स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं, तो I need people to respond on the chat box. Dr. Sandeep, thank you. Nisa says yes. Sara says yes. So we are good to go. The other people, Dr. Khan और बाकी जो लोग हैं, it's okay. You can put in a little message in the chat. Sadaf says yes, so that I can know that we can move on. तो सारा मतलब क्या है? हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जितने एक्शंस हों, जितने हो, हमें उन कामों से हैप्पीनेस मिले. The primary goal of our actions is to achieve happiness or pleasure from everything. So there is happiness का भी एक scale अगर आप देखें, from pleasure to welfare है. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस तो एक इंडिविजुअल, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि इंडिविजुअल है और आपके इर्द गिर्द जितनी आपके कम्युनिकेशन हो रही है और सोशल बॉन्डिंग हो रही है, कल्चर है, तो ये है. व्हेन यू टॉक अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ अ ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी, दैट इज द वेलफेयर टू द सोसाइटी व्हिच यू आर गोइंग टू गिव. ये हमारे पास काफी सिनेरियोज में, जिस तरह कोविड में भी था, वी वर थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या हमारी जब वॉर सिचुएशंस हो जाती हैं, then we talk about and think about welfare of the society. We do not think about those small group of soldiers जो border में जा रहे हैं और हम उनको basically भेज रहे हैं to protect the whole society या whole पीछे country या city पड़ी हुई है. तो that is the welfare of the citizens that they are protecting over there. और प्लेजर क्या होता है? शुरू में मैंने बात की थी सेरोटोनिन की. हाउ इज प्लेजर डिफरेंट देन हैप्पीनेस? चैट में बोल कर लें, माइक में बोल लें. हाउ इज प्लेजर डिफरेंट देन हैप्पीनेस? ये मैंने दोनों चीजें अलग क्यों लिखी हैं? प्लेजर मे बी कुड बी समथिंग टेम्पररी, कि आपको किसी चीज से खुशी मिल रही हो उस एक मोमेंट में. हैप्पीनेस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसका होगा, मे बी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड. एंड यू आर थिंकिंग करेक्टली डॉक्टर सुमेरा. प्लेजर इज एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड और सेरोटोनिन इंड्यूस्ड होता है, और बिल्कुल शॉर्टलिस्ट जिस तरह हमारे केमिकल्स काम करते हैं वो काम करके खत्म हो जाता है. सना इज सेइंग ड्यूरेशन डिफरेंस. यस. Sadaf also, pleasure can be physical, happiness is spiritual. Okay, yes. आपकी state of mind है ना happiness, तो pleasure can be bodily as well. और जो bodily चीजें होती है, physical चीजें होती हैं, वो usually short lived होती हैं. और आपका जो mental state है, जिसमें इन्होंने spiritual भी mention किया, वो थोड़ी constant आपकी चल रही होती है. तो lot of pleasures they can come and go. अब हमारे आजकल क्या हुआ है, ये lack of empathy या lack of हमारे जो बच्चों में आ गया, boredom आ गया है, वो क्यों आ गया है? क्योंकि उनकी continuous serotonin release हुई है with the mobile games, and now they have lost that feeling of being happy in the long term. So they are constantly being like, I'm being bored, ममा क्या करना है, ममा समझ नहीं आ रही. और ये बड़ा constant हमारी इस generation का है, जो हम अपने बच्चों में देख रहे हैं चीजें, कि they have received so much pleasure that yes, they overindulge themselves with games and TV, क्योंकि वहां पे उनको छोटी छोटी डोपामिन रिलीजेस मिलती हैं और वो उसके ऊपर खुश होते हैं, और वो उसमें फिर इसी तरह एडिक्शन में डल जाते हैं. और उनको एक रियल लाइफ में जो एक सटल प्लेजर होगा, वो उनको इतना मजा नहीं आएगा जितना उनको गेम में आएगा, गेमिफिकेशन में आएगा. So the primary goal of our actions is to achieve happiness or pleasure for ourselves and or welfare for the society. All agreed? अभी तक we are all going together? Yes, no, maybe. Yes, Dr. Sandeep, thank you. So इसका मतलब है कि जिस तरह हम यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं और अपने यूटिलिटी आइटम्स लेते हैं, इसी तरह हमें चॉइस दी गई है to select our actions because every action has a utility. ठीक है? Every action has a utility, and utility is a measure of the satisfaction that a certain person has from a state of the world.
उसकी यूज कितना है एक एक्शन का, आप हमेशा ये सोचते हैं, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये भूलना नहीं चाहिए कि आपकी एक्शन की यूटिलिटी या आउटकम या कॉन्सिक्वेंस जो है उसके मुताबिक आपका क्या होगा, दैट इज द मोरालिटी ऑफ एक्शन। यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थ्योरी दैट इवेलुएट्स द मोरालिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स, specifically aiming to maximize overall happiness और वेलबींग। जो शुरू में अभी बात की थी यहाँ पे जब मैंने पूछा था, तो ये आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है आपका, तो इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम कर लेते हैं। दिस इज वेयर यूटिलिटेरियनिज्म स्टैंड्स। अभी आप देख रहे हैं एथिकल थ्योरीज है, वर्चू एथिक्स आपने पढ़ लिया, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स पढ़ लिया, या थोड़ा सा आपकी ओरिएंटेशन होगी। अब कॉन्सिक्वेंशलिज्म में आपकी यूटिलिटेरियनिज्म है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म है क्या बेसिकली, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें आपकी 3 तरह के पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 मोटा मोटा बताऊंगी, एथिकल इगोइज्म, एथिकल एल्ट्रुइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। एथिकल इगोइज्म फोकसेस ऑन व्हाट गिव्स you as a person the most happiness, not the society. And ethical altruism is the one which gives the society the greatest pleasure and not you. While utilitarianism is the one which gives greatest happiness to both of you and the society in general. ठीक है, ये उसका मिडवे आ जाएगा। सो मोटी मोटी अगर हम बात करें, वर्चू एथिक्स आपका एजेंट था, द पर्सन who is performing a duty, deontology, resulting in an outcome. So हमारा जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रिडिक्टिंग द आउटकम एंड थिंकिंग के इन फ्यूचर इस तरह एक्शन होगा तो ये आउटकम होगा, तो दैट वुड गिव हैप्पीनेस, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रिजल्ट। फ्यूचर को वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट वी कैन नॉट से फॉर 100% कि यही होगा फ्यूचर में, बट वी कैन ओनली प्रिडिक्ट एंड वी कैन ओनली एक तरह का आइडिया लगा सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म में इसका इतना हैप्पीनेस का होगा, एंड और ये ग्रेटेस्ट सोसाइटल मेंबर को मिलेगा। तो जेरेमी बेंथम is the main person who introduced this concept of utilitarianism and it was expanded by Stuart Mill. आगे बात करते हैं इसकी, और उसके बाद हमारी डिफरेंट यही जो मैंने बात की थी, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट फ्यूचर, हाउ कैन यू से कि ये विद गारंटी कि ये इतना ग्रेटेस्ट इफेक्ट लाएगा कि नहीं लाएगा। सो उसमें काफी डिबेट वगैरह आई, तो दिस कॉन्सेप्ट वॉट पुश बैक फॉर अनदर 40 years or 50 years or so. However, again, जब इसकी एप्लीकेशन रिवाइवल स्टार्ट हुआ तो मॉडर्न एथिक्स में नाउ यूटिलिटेरियनिज्म हैज अ वेरी बिग रोल। तो जेरेमी बेंथम गेव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। उसकी 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी मॉरली राइट इफ इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एंड कॉन्सिक्वेंशलिज्म सेकेंडली वो कहता है कि moral worth of an action is determined by its consequences rather than the intrinsic qualities or the intentions. यानी कि वो ड्यूटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो करेक्टर के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जब आपका एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके ऊपर आपकी मॉरल वर्थ एक्शन की पता चलेगी। और हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल इसी का था जो कि ये कहता था कि द आइडिया दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज द ओनली इंट्रिंसिक गुड, individual intrinsic good, and thus the action should be judged based on their capacity to generate greatest pleasure and minimize pain. मेरे लिए, if I am following Jeremy Bentham, I would do an action based on hedonistic pleasure that मेरे लिए personally मैं वो काम करूंगी जिसमें मुझे प्लेजर ज्यादा आ रहा है और पेन कम आ रही है। और ये अगर जब बात करता है ये, तो ये आ जाती है मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस पे। इसका फॉर्मूला फिर ही गेव, इसके ऊपर हम बात करेंगे। You can measure happiness and there are multiple questionnaires now in the internet. You can see this is just a sample which I made, that you can have happiness score, life satisfaction, daily joy parameter, community well-being का भी कर सकते हैं, and you can measure कि आपका overall happiness score क्या है, overall quality of life क्या है,
और हम पेशेंट्स की भी इसी तरह बात कर रहे होते हैं कि उनका कैसे आउटकम चल रहा है। तो इन वन वे और दी अदर वी आर एक्चुअली इन दिस फील्ड और हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो डिसीजंस में भी और हमारे आउटकम में भी हम इसको देख रहे होते हैं कि जो भी है। अब ये हमने बात की, देयर वुड बी सिचुएशंस व्हेन प्लेजर वुड बी मोर देन द पेन, so that is a morally right action. However, if the pain is more than the pleasure, that is a morally wrong action. इसकी जिस्ट ये है. So Bentham gave forward that you need to do actions that maximize happiness, and you can even measure happiness or do have different metrics that can measure happiness. और ये मैट्रिक्स की आगे बात करते हैं, and you can apply this principle of happiness all across different context and in different to have societal benefit. एजुकेशनल में इनका अंडरस्टैंडिंग ये आगे मैंने अपने से खुद लिखा था कि we should teach our students as well about the educational emphasis and the need to have this thinking process of thinking good for everyone and for the patient and for the societal in general. So थोड़ा सा हम दोबारा जाएंगे और उसी मेंटीमीटर में जाएंगे और we are going to search पहले कि what is the philosophic calculus given by Jeremy Bentham, और वो हम वहां पे लिखेंगे। एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑन, ये ऊपर लिंक है, इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चैट से, सो दैट अगर किसी का मिस भी हुआ हो तो वो दोबारा इस पे चले जाए। इसकी सेकंड स्लाइड सर मैं ऑन कर रही हूँ, जो कि आई थिंक मैंने वहां पे ऑन कर दी है, आपको नजर भी आ रही होगी। लेट मी नो इफ यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड आपके अपने कंप्यूटर्स में। यहाँ मैं शेयर कर देती हूँ। जी इधर नजर आ रही है आप लोग को? ये वाला पेज नजर आ रहा है अपनी अपनी उसमें? ओके, थैंक यू डॉक्टर संदीप। सो जस्ट टेक 5 minutes, fill in the responses। इंटरनेट पे सर्च कर ले, जो समझ आता है। इसके डिफरेंट मैट्रिक्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, हैप्पीनेस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं।
राइट, सो वी हैव चैट में डॉक्टर अनीसा ने लिखा है, वहां से शुरू करते हैं. An algorithm, also known as utility calculus, based on various several variables and circumstances. Okay. So here we have a response. An algorithm formulated to calculate the degree of amount or amount of pleasure. ठीक है, degree का है, amount of pleasure का है. एक हमें आया है, it is the analog for measuring happiness. ठीक है. How to measure happiness आगे लिखा हुआ है, consisting of duration. कि ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, प्योरिटी क्या थी, परसेंटिटी क्या थी, यानी कि एबिलिटी टू रिपीट इटसेल्फ. ठीक है नहीं, नॉट जस्ट हैप्पीनेस बट इट विल मेजर अमाउंट ऑफ पेन एज वेल. इट इज यूज्ड टू डिटरमिन moral rightness of an action. Right. Algorithm to calculate pleasure, an action resulting in the longer lasting pleasure and pain has more weight in the calculus. Okay. और ये नीचे अभी छोटा हो रहा है, इधर आ जाए. अच्छा, and method of working out the total sum of pleasure and pain produced by an act and thus the total value of its consequences. Yes, there are 7 elements of calculus: intensity, duration, certainty और uncertainty, और आगे भी थे वो, इसमें मेरे ख्याल पूरा नहीं आया. How many people will be affected by the pleasure or pain? The more people positively affected, the more valuable the action is considered in the calculus. यानी कि the more people affected with the positive outcome, the more would be, ठीक है, उसके मार्क्स आ जाएंगे. और ये वो जेरेमी बेंथम ने दिया था. बट प्रॉब्लम क्या थी इधर, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सिंपल लग रहा है, तो सब कुछ ठीक होना चाहिए. तो मिल्स कहाँ से आ गया, मिल्स कहाँ से आ गया फिर जनाब? मिल्स ने डिबेट किया था कि ये जो हैप्पीनेस है उसके टाइप्स ऑफ, अगर ज्यादा हैप्पीनेस आ रही है एक कॉन्सिक्वेंसेस से, डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है, तो हायर प्लेजर्स हैं एंड लोअर प्लेजर्स हैं. एंड ये यू नीड टू डिसाइड ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. इसकी बहुत एक कॉमन एग्जांपल एथिकल डिलेमास में हम अक्सर पढ़ते हैं कि एक आप बोट पे जा रहे हैं एंड यू सी टू, ऑन योर लेफ्ट साइड देयर आर 2 people drowning and on the right side there is 1 person drowning. तो whom would you save? Either you can go to the left or to the right. किसको सेव करेंगे जनाब? You are rowing a boat and on the left side you see 2 people drowning and on one side, right side, you see 1 person drowning. All of 3 are young, and who would you save? Would you With this theory, I think we'll go for the maximum pleasure, maximum happiness. So we'll pick the where we have supposed to save 2 rather than 1, according to Okay, this theory. so according to this theory, you would move towards, according to the Bentham theory, you would move towards the person saving 2, right? सेंस भी बनती है. मैक्सिमम ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू फॉर ग्रेटेस्ट फॉर ऑल, ये भी आपको मिल रहा है. अब व्हाट इफ दैट 1 person who was drowning was a scientist जो कि कैंसर की वैक्सीन बना रहा था, and the 2 people were the prisoners who had run from the prison. So now what? अब क्या करें फिर? वो जो एक बंदा आपने छोड़ दिया है, वो बेचारा एक साइंटिस्ट था जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट बना रहा था, या कोई कोविड टाइप डिजीज की वैक्सीन बना रहा था, जिसकी वजह से सबको फायदा होना था. सो डॉक्टर संदीप विल बी विद स्टुअर्ट मिल हु सेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सेव द साइंटिस्ट. ठीक है, और वो जो प्रिजनर्स जो भागे थे उनको हम दो, बेशक वो 2 हो या जो हो, you will go towards the scientist then. So that is the quality. अब ये हमारी सबसे कॉमन एग्जाम्पल कहाँ पे आती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में आती है जनाब. वी हैव पीपल वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. एक जगह पे PKLI में या कहीं भी there are people waiting for 2 people for kidney, 1 for heart, 1 for liver.
Would you kill a human being to benefit 4 or 5 of those people? जो कि वो उनके साथ compatible आ रहा है by chance? Is it morally correct? No, Dr. Sumaira says yes. Dr. Sumaira, आप ना ये direct everyone to message कर ले. No, so it wouldn't be morally correct. So that is where Mill debated. और ऊपर बड़ा अच्छा सदफ ने लिखा हुआ था. We are going to read her statement now, जो chat में लिखी हुई है. Philosophic calculus is flawed due to the subjective, unquantifiable nature of pleasure and pain and its inability to account for justice, rights, and unforeseen consequences. This makes it impractical and ethically problematic in the real world situation. Now we understand this sentence जो उन्होंने लिखा था. So, जो मिल है वो कहते हैं you need to find आपकी हायर प्लेजर्स क्या है, लोअर प्लेजर्स क्या है. एट टाइम्स आपकी लोअर प्लेजर्स में भी अगर क्वालिटी आपको मिल रही है तो यू नीड टू डिसाइड ऑन दैट. और हमारे प्लेजर्स की मैंने पहले भी बात की थी कि दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन. ये इन्हीं की क्वालिटेटिव बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन है हैप्पीनेस की. जो फिलोसोफिक कैलकुलस है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द हैप्पीनेस. सो यहाँ तक everyone is clear and everyone can see how quality and quantity की happiness हो गई. So there are two different types of utilitarianism. Thank you, Sadaf. Act utilitarianism, which checks the action, and the rule utilitarianism, which checks whether the rules are being followed to produce a consequence or not. अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं. एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में सिनेरियो की बात कर लेते हैं. A physician is faced with a situation where they can administer a life-saving drug to a patient who is at risk of severe adverse effects, or they can administer a less effective but safer treatment. ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग है जो कि रिस्क है उसका एडवर्स इफेक्ट का, या फिर लेस इफेक्टिव ड्रग दें बट सेफर ट्रीटमेंट दें. तो इसमें आपने वे इन करना है कि ग्रेटेस्ट आपका बेनिफिट किस चीज में है. सो द फिजिशियन हु वुड फॉलो द एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म morality would administer the life-saving drug to the patient, because despite the risk of adverse effect, the immediate benefit of potentially saving the patient's life outweighs the potential harms. And this decision is based on a careful consideration of a specific context and expected outcome. वो उस वक्त ये सिचुएशन को करेगा. अब at times हम लोगों को being I'm also a gynecologist, so हम लोगों को we have to decide on a cesarean hysterectomy in a young primary gravid patient who had a abruption uterus, and her 7-month-old fetus had also had been declared dead क्योंकि 7 month पे था और वो IUD थी उसकी और यूट्रस की किया तो सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ी. सो देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें काउंसल करना पड़ा कि अच्छा ठीक है इस वक्त लाइफ सेविंग इज द हिस्टेरेक्टमी, एंड ऑल्दो इसकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बेयर अ चाइल्ड वुड बी लॉन्ग टर्म और वो आगे लेके चलेगी. बट द थिंग इज एट दैट टाइम दैट वाज द डिसीजन टेकन. So that was the act utilitarianism. Anyone can share in their field, most welcomed. Any act utilitarianism you have witnessed or even done in your own field? आई थिंक जितनी भी कैंसर की ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें भी यही होता है कि दो आपके उसके साथ कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, या किसी भी इमरजेंसी कोई डिसेबिलिटी उसकी वजह से पैदा हो रही हो लेकिन वो लाइफ सेविंग होती है तो वी यूजली गो फॉर द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उस सिचुएशंस के अंदर. तो आई थिंक इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी इस तरह की भी.
Where would, thank you Dr. Sumaira, where would euthanasia come? आई थिंक उसी डिसीजन के अंदर कि उसकी जो ऑब्वियसली लाइफ सेविंग जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस सिचुएशन में. नहीं, euthanasia is the merciful killing ना of the patients already put on ventilator या life support पे. ओ सॉरी. हाँ. यूथनेसिया, हाँ, यूथनेसिया की बात कर रही हूँ. Where would euthanasia come? Euthanasia is an act of act utilitarianism या rule utilitarianism? रूल की आगे बात करते हैं, अभी एक्ट पे ही करते हैं. चलें, देखिए सिचुएशन चेंज होगी. एक पेशेंट जो क्रॉनिकली वेंटिलेटर पे है और चल रहा है, वो अभी स्टेटस को पे चल रहा है. When ending a life causes less pain and और उस पे सिचुएशन आ जाती है, एक और पेशेंट आ जाता है और वहां पे वेंटिलेटर नहीं है. ठीक है, तो that is where euthanasia become an act utilitarianism to save life of the other patient. और वो है when ending a life causes less pain than the persistent suffering of the disease. So that is the context जो कि आपका चेंज हो जाता है. Although हॉस्पिटल का रूल कहता है कि हम यूथनेजिया नहीं करेंगे. अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि हम नहीं करेंगे और अगर इस तरह वो कर लेता है तो ठीक है. इसी तरह हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी तो रूल्स है ना. दे वांट डिग्री रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स. हमारे यहाँ पे जो रूल्स बने, मैं बाहर की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ पे किसी वजह से रूल्स बने हुए हैं, बिकॉज देन देयर आर डिफरेंट क्राइम्स एंड ऑर्गन स्टीलिंग एंड एवरीथिंग गोज ऑन. सो दे वुड प्रेफर कि आपके अपने रिलेटिव्स हों जो कि ऑर्गन डोनेशन करें. हाउएवर, the rule can be broken down, the rule can be modulated, shifted with the order of the court. कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लिविंग डोनर्स की जो लिस्ट होटा के पास पड़ी हुई है, यू कैन यूज दैट. अदरवाइज आपका ये चल रहा है. तो रूल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर भी आते हैं. अब ये है कि the hospital has a policy that prohibits doctors from accepting gifts from pharmaceutical companies to avoid conflicts of interest and maintain impartiality. अब रूल क्या है? रूल यूटिलिटेरियन रूल डिसीजन है. इवन इफ accepting a small gift from a pharmaceutical company might have an immediate benefit in terms of better cooperation or additional resources, the hospital adheres to the rule that prohibits such gifts. This rule is based on an understanding when universally followed, it promotes the greatest overall benefit by maintaining trust and integrity in medical practice and reducing potential biases. ठीक है, तो आपका जो act utilitarianism है, that determines the right action based on the consequences of individual acts. जिस तरह अभी मैंने आपको सिजेरियन हिस्टेक्टमी का बताया, यूथनेजिया का केस बताया, डॉक्टर सदफ भी कह रही है when ending the life is less pain. तो उसमें आपने पेन का भी वेरिएबल देखना होता है, हैप्पीनेस तो नहीं, पेन का आप वो देख रहे हैं. रूल क्या कर रहा है? डिटर्मिन्स द राइट एक्शन बेस्ड ऑन द रूल्स दैट जनरली प्रोड्यूसेस द बेस्ट आउटकम. बेशक आपको उस वक्त लग रहा होगा कि नहीं जी इस तरह का काम करने शॉर्ट टर्म है, खत्म हो जाएगा, बट ओवरऑल अगर आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो थोड़ा सा काम करने से ओवरऑल पेशेंट्स का बेनिफिट खराब हो रहा है, या आप डिस्पेरिटी कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं नॉन अफोर्डिंग और आप इनको महंगी महंगी दवाइयां लिख के दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द रूल यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल्स. So that action would be morally wrong in the long term. Act utilitarianism evaluates each act independently, whereas the rule utilitarianism जरा broader aspects में आपको gives a bird's eye review और overall utility to the general आपकी population को वो देता है. और evaluation आपकी जो होती है act की शॉर्ट टर्म में फौरन हो जाती है, यूजुअली इमीडिएट हो जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस हमें नजर आ जाते हैं हर स्टेप पे, हर एक्ट के ऊपर. और रूल यूटिलिटेरियनिज्म के हमें वी नीड टू फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेस अक्रॉस ऑल सिचुएशंस और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी जाके इसको फॉलो करना होता है. इसकी वैल्यूएशन जरा ब्रॉडर बेस्ड होती है. Outcome of act utilitarianism seeks to maximize happiness for each individual action, even if it means breaking rules. And rule utilitarianism seeks to maximize overall happiness by following rules that are generally beneficial. अब flexibility, act वाला ज्यादा flexible होगा, rule वाला would be less flexible. और consistency,
और जो लेस फ्लेक्सिबल है, रूल है, वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्ट। और एक्ट वाला आपका स्पेसिफिक सिचुएशन में चेंज होता है, वेरीज विद इवन स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी, वार्ड टू वार्ड, ब्लड डोनेशन, ये सारा कुछ आपने अगर उसकी लेनी हो। मगर आपका जो रूल यूटिलिटेरिज्म है वो ब्रॉडली अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन आप ओवरऑल कर सकते हैं। मगर क्रिटिसिज्म इसकी यही है कि एक्ट जो है इट कैन इवन अलाउ थेफ्ट्स और मर्डर्स ऑफ पीपल, स्टीलिंग, कि मैंने तो इसको मारा था क्योंकि ये मुझे अटैक कर रहा था, या मैंने इसको मार दिया बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू किल मी, या टेकिंग थिंग्स फ्रॉम मी। और रूल यूटिलिटेरियनिज्म मे बी टू रिजिड इन द कॉम्प्लेक्स केसेस। सो इन सब के अपने वेइंग होते हैं, सिचुएशन के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमने ये करना होता है। अब ये दो सिचुएशंस हैं, इनमें से बताएं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म लेफ्ट साइड पे है, रीड इट, टेक 1 minute, read it, and then we can discuss. ये डॉक्टर सुबैना ने एग्जांपल दी थी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की, जो हमारे क्रिटिकली पेशेंट्स होते हैं और वो कैंसर के होते हैं, उनके ऊपर ही somewhat similar example है। डॉक्टर might decide to use an experimental treatment for a critically ill patient because in that specific instance the potential benefits outweigh the known risk. The decision is based on immediate circumstances and possible outcomes for that patient alone. दूसरे पेशेंट पे शायद ये डिफरेंट हो। मगर रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या कह रहा है? द डॉक्टर फॉलोज अ जनरल गाइडलाइन दैट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट शुड ओनली बी यूज्ड इन कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, and this rule is designed to ensure that all patients benefit from the safety and efficacy data accumulated from such trial. खुद से छोटी मोटी ट्रायल नहीं, आपकी कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, देयर मे बी अ रूल ऑफ द हॉस्पिटल, और उसमें आप पेशेंट को न्यू ड्रग या एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। While this might limit immediate treatment options to in some cases, it aims to maximize overall patient safety and benefit in the long term. तो ये हमें समझ आया, यूज ऑफ ड्रग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन अ स्मॉलर स्केल एंड इन क्लिनिकल ट्रायल। तो जहां जहां एंडोर्समेंट हो रही है क्लिनिकल ट्रायल्स की कि यू नीड टू डू दैट, आरसीटीज करें और सारा करो, दे आर फॉलोइंग द रूल यूटिलिटेरियनिज्म। सो एप्लीकेशंस क्या है यूटिलिटेरियनिज्म की? अभी हमने काफी केस स्टडीज की, डिस्कस की। तो मेन प्रिंसिपल वही रहते हैं, यू फोकस ऑन द हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। The ethical approach aims to generate the best outcome for the society. Consequences पे बात करता है, और साथ साथ थोड़ी सी मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अडॉप्टेबिलिटी इन एथिकल डिसीजन मेकिंग है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, ये भी इसमें होती है। तो यूट्यूब वीडियो का मैं लिंक लेटर शेयर करूंगी। दिस वाज अ गुड लिंक, बल्कि मैं अभी शेयर कर देती हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट, यू कैन वॉच लेटर। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? या तो इस ग्रुप को सब कुछ ही आता है या कुछ नहीं आता, या कोई सुन नहीं रहा। एनी क्वेश्चंस, एनी फूड फॉर थॉट अप टिल नाउ? असल में पार्टिसिपेंट्स ये हैं अनीसा, सदफ, नो क्वेश्चंस, ब्यूटी, थैंक यू सो मच सदफ, सारा एंड सुमेरा, डॉक्टर सुमेरा आई, बाकी मेरा ख्याल में वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वी आर नियर द एंड। सो हमें आइडिया होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज रिसोर्स एलोकेशन, जहां जहां डिसीजंस आएंगी वहां वहां हमें रिसोर्स एलोकेशन
डिसीजंस ऑन रिसोर्स एलोकेशंस होंगी, वी आर इन लीडरशिप रोल्स एज वेल, तो वहाँ हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, और ये हम बहुत कॉमनली अपने डिपार्टमेंट्स में देख रहे होते हैं। हमारे HODs डिसाइड कर रहे होते हैं, या हमारे जो हायर हायरार्कीज में MD MS इवन प्रिंसिपल्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस रिसोर्स एलोकेशन। और ये है कि यूटिलिटी, वो उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स इन द पॉपुलेशन। सेकेंडली, जब आप अपनी वार्ड्स में होते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के ऊपर भी आप उनको कर रहे होते हैं। यू नीड टू मेक श्योर दैट द पेशेंट्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और उनका ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अबाउट रिस्क्स एंड बेनिफिट्स, ये भी एक तरह की उनके ऊपर, उनको आप सिखा रहे होते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स। बेसिकली they weigh in their risk and benefit, and informed consent is an very practical example और बहुत common example है जो हम हर एक से ले रहे होते हैं। If beautifully done, the question is, do we even take informed consent the way it is meant to be taken? वो वाला सवाल ये अलग आता है, मगर if done properly तो आप अपने पेशेंट्स को भी एक्चुअली आप अवेयरनेस दे रहे होते हैं अबाउट दिस मॉरल थ्योरी। पॉलिसी डेवलपमेंट में यूज होता है लार्जर एक्सपेक्ट्स में, जब वी हैव टू डेवलप गाइडलाइंस, वी हैव टू डेवलप रूल्स, एंड वी हैव टू इन्फोर्स सम लेजिस्लेशन, तो वहां पे हमारे एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हमने इतने अभी केस सिनेरियोस पढ़े, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात पढ़ ली हमने, कैंसर ट्रीटमेंट की बात पढ़ ली, ट्रांसप्लांटेशन की, सिजेरियन हिस्टेक्टमी की बात की, वहां पे हमारी ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं यूटिलिटेरियनिज्म की। तो ओवरऑल हेल्थ केयर में और पब्लिक पॉलिसी में आपकी यूटिलिटेरियनिज्म आपकी आती है, और रूल यूटिलिटेरियनिज्म में लीगल एस्पेक्ट आपका ज्यादा आ जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगा, आपके कॉर्पोरेट एथिक्स में आ जाएंगे, जो आपके प्राइवेट सेटअप्स हैं उनमें भी आपका आ जाएगा, और हेल्थ केयर डिसीजंस में भी आ जाएगा। अच्छा, Sadaf is saying utilitarianism supports decisions like vaccinations, quarantine measures, yes, excellent, or health campaigns aimed at improving overall well-being for the population, even if it inconveniences a few. क्योंकि a few की बात हो रही है ना। अब इसके जो अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सदफ ने इधर बात की तो मैं भूल ना जाऊं, ये जो a few है ना, ये a few is a very subtle term। अगर अ फ्यू में आपकी डाइवर्स पॉपुलेशन या दोस्त माइनॉरिटीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, या आपकी कोई और रेशियल माइनॉरिटी है, अगर वो इफेक्ट हो रही है, फिर देयर इज अ डिबेट कि यूटिलिटेरियनिज्म मॉरल थ्योरी है भी कि नहीं। ये जो अ फ्यू की बात सदफ ने भी लिखी है, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड फॉर मी, कि यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी राइट का ख्याल नहीं करेंगे और उनको उस तरह नहीं देंगे, और आप ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन की वेलबिंग करें, तो ये इसकी थोड़े जो ओपोनेंट्स हैं ऑफ दिस थ्योरी वो बात करते हैं। In triage emergencies or with limited resources, doctors can prioritize patients who are likely to benefit the most, ensuring the greatest good for the greatest number. Yes. अच्छा, फ्यूचर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? आपकी इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी और बिजनेस प्रैक्टिसेस में, ठीक है। और चैलेंजेस हमारे, ये जो मैंने कहा था, इंडिविजुअल राइट्स की बात आ रही है, आपकी इंडिविजुअल राइट्स, और उसमें आपकी वो हो जाएगी मेजरिंग आउटकम्स के लिए हमारा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आपकी ये होती है कि कैलकुलेशंस वगैरह में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इमीडिएट हैप्पीनेस का हो जाए और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का ना हो। Yes, a few can be sensitive, like when Shia pilgrims of Iran was isolated in Quetta in the start of the COVID pandemic. Yes, exactly. So even then, यहाँ पे हमारी यूटिलिटेरियनिज्म नहीं हुई। तो जब भी आपका फ्रेमवर्क आना है, any ethical dilemmas, हम यहाँ पे तो हैप्पीनेस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पे डियोंटोलॉजिकल आप अप्लाई कर लेना, वहाँ पे आप करेक्टर का क्वेश्चंस कर लेना कि am I of the right character or not। मगर यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म का एक प्रिंसिपल, एक ये फ्रेमवर्क देख लेते हैं। Number one, you always define the ethical dilemma. Okay, what is the problem here and who are the stakeholders involved? यानी कि जिस तरह अब what I had been practicing कि मैं ये एक शीट पे बैठ के इसकी हेडिंग और सब हेडिंग लिख लेती थी, और जो भी केस डिलेमा होता था स्टूडेंट से भी जो मैं करवाती हूँ वो मैं इसी गो में करवाती हूँ कि ओके नाउ डिफाइन द प्रॉब्लम, एथिकल डिलेमा, उसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड स्पेसिफाई द स्टेक होल्डर्स,
देन गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कि उस केस के इर्द गिर्द आपको क्या केस सिनेरियो में दिया हुआ है, यू कलेक्ट दैट डाटा, असेस पोटेंशियल इम्पैक्ट, डिस्कस करें आपस में, देन यू एनालाइज द आउटकम्स, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स या हार्म्स क्या है, और आप इम्पैक्ट की क्वांटिफिकेशन कर लें कि ठीक है फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। अब अप्लाई द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, हैप्पीनेस प्रिंसिपल। इसमें आपने फिर प्रायोरिटाइज करनी है कि ठीक है एक्शंस आपके किस लेवल में, कौन सा एक्शन होगा जो कि मैक्सिमम आपको हैप्पीनेस देगा और कौन सा होगा जो कि आपको लीस्ट प्लेजर देगा, और आप इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या आप कर सकते हैं। और इसकी एथिकल कंसिडरेशन आपने करनी है कि इसमें इश्यूज ऑफ जो हम शुरू से एथिक्स में बात करते हैं, राइट्स, फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी, बेनोवलेंस, ये सारी चीजें आपकी जो हैं एथिकल कंस्ट्रेंट्स डिस्कस हो रही हैं कि नहीं, और बेस्ड ऑन दीज ऑल कॉन्टेक्स्ट आप डिसीजन बनाएंगे। अब ये सारे स्टेप्स जो हैं देखने में तो बड़े सिंपल लग रहे हैं, बट दे आर सो कंटेक्चुअल कि अगर मैं यहाँ पे ही जगह चेंज कर दूं, एक बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दूं केस को मैं अपने छोटे तहसील गोजा वेयर आई लिव वहां के एक बीएचयू में, तो आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो सी हाउ वन सिचुएशन, एक वेरिएबल को चेंज करने से मेरी डिसीजन पूरी इम्पैक्ट हो जाएगी फॉर यूटिलाइजिंग यूटिलिटेरियनिज्म इन दैट स्पॉट। सो ये वाली चीजें हमेशा हमने नोट करनी होती है। कल को यू आर गोइंग टू बी अ टीचर्स इन दिस, and inshallah you would also be teaching students such cases, so you can modulate your cases like this. Make a decision, then you implement and monitor. ये सारे practical होते हैं कि आप ग्राउंड में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यू मेक अ डिसीजन, यू डॉक्यूमेंट इट, एंड देन यू एग्जीक्यूट द डिसीजन, मॉनिटर आउटकम, एंड देन यू रिफ्लेक्ट एंड व्यू। ये वाली आखिरी तीन जो है ये तो हम हर साइकिल में ही करते हैं, जब भी हमने कोई अपना एक्शन प्लान बनाना है तो उसमें हम ये करेंगे। सो दिस इज अ लिटिल ब्रीफ फ्रेमवर्क, और इसमें हमारे बेसिकली मेन यही है कि मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, मिनिमाइज सफरिंग, कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस, think about the ethical consideration, inclusivity, act in an impartial way, और long term benefits भी देखें इनके। So these are the 4 scenarios. So ये लास्ट पार्ट है, इसलिए लेट्स टेक, आप लोग कितने हैं? आई थिंक 6 पीपल हो या 4 हो, ये जो हो इंडिविजुअल लेवल पे कर ले। आई एम गोइंग टू गिव Anisa and Sadaf, you can have scenario 1. Sana, you can work on scenario 2. Sara, scenario 3, and Dr. Sumaira, scenario 4. ये थोड़ा पढ़ लें और इसको फिर हम फ्रेमवर्क की बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Anisa and Sadaf, scenario 1, Sana, scenario 2, Sara, scenario 3, and Sumaira, scenario 4. मैं इसी तरह स्लाइड रखती हूँ, इसको 5 मिनट्स तक देखें, और ये मैंने बीच में ये भी लिख दिया। तो we are going to discuss like this. You can take a paper और उसमें सारा कुछ लिख लें so that we can all go through it. 5 मिनट्स में करते हैं, 6:14 पे वापसी।
जी, we can start with Sadaf and Dr. Anisa, I think इकट्ठे थे इसमें. So what was the scenario? Is everyone ready? Everyone ready? Yes, okay. Thank you, Dr. Sumaira. अच्छा, पहला सिनेरियो पढ़ लेते हैं. During a severe influenza outbreak, a hospital faces a critical shortage of ventilator. There are 10 ventilators available, but 20 patients in need of them, all with varying degree of illness. ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? What is the issue over here? Resource allocation, right? Now, Sadaf, would you like to explain कि आपने क्या लिखा है उधर? अच्छा, चले ठीक है. रिसोर्स आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम रिसोर्स एलोकेशन है. ओके, नो प्रॉब्लम सदफ, वी कैन टेक्स्ट अलोंग. हाँ, चैट में करते जाओ. अच्छा, अब इसमें अगला सवाल मेरा था आपसे कि इसका अगला पॉइंट क्या था? स्टेक होल्डर्स कौन है? हम इस तरह ही करेंगे स्टार्ट में, बाद में हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा तो हम कर लेंगे. अनीसा ऑल्सो डिड दिस. यूटिलिटेरियन अप्रोच, एलोकेट वेंटिलेटर्स मोस्ट लाइकली टू रिकवर. इसमें वेइंग करना है, तो जो रिकवर नहीं कर पा रहे तो उनको हम छोड़ देंगे. Priorities to the worst of. अच्छा, Anisa is saying allocate ventilator to those most likely to recover, maximizing the number of life saves. अच्छा, शुरू में वो कह रही है जो ज्यादा रिकवरी वाले, क्विक रिकवरी वाले हैं उनके साथ करके उनको करते हैं. इक्विटी बेस्ड अप्रोच, यूज अ लॉटरी सिस्टम. प्रायोरिटी टू द वर्स्ट ऑफ, गिव वेंटिलेटर्स टू द सिकेस्ट और यंगेस्ट पेशेंट जिनकी आगे जाके सोसाइटी में भी यूटिलिटी है. तो डॉक्टर अनीसा ये कह रही है दिस इज अ गुड एस्पेक्ट एज वेल कि सोसाइटी में आगे जाके किसका होगा. Sadaf is saying in this scenario, the hospital should prioritize patients based on the likelihood of recovery and survival to maximize overall benefit while maintaining fairness and transparency throughout the decision making process. Yes, जब इस तरह की बात हो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इनकी ट्रांसपेरेंसी रखें. गुड. और यूटिलिटेरियनिज्म कैन गाइड resource allocation, but it must be balanced with consideration of. ठीक है, सही है. तो इसमें हमें एक नई बात पता चली कि आपने इक्विटी के बारे में बात करनी है, आपने पॉपुलेशन के ऊपर उसकी असेसमेंट्स करनी है ताकि आपका वो आगे हो. दैट्स अ गुड पॉइंट. और एक मिनट, लेट मी ओपन अप माय नोट्स. मैंने भी कहीं बनाए थे तो मैं इसको जिस तरह मैं करती थी. यस, इसमें ये था कि गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. अब आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? ये दोनों डॉक्टर्स भी यही कह रही हैं, डॉक्टर नीसा और सदफ, कि यू नीड टू नो अबाउट द पेशेंट प्रोग्नोसिस, potential benefit of ventilator use and overall impact on the survival rate. You analyze the outcome, evaluate which patient are likely to benefit the most and apply the greatest happiness. Prioritize patient who will achieve the greatest overall benefit. Consider ethical constraints. Ensure fair criteria for selection, avoiding discrimination. Make a decision. Allocate ventilator to patients with the highest chance of recovery, जो कि already very nicely discussed. Implement and monitor a reflect and review. ये चले हमारी बात की बात है. Let's come up to case number 2. Case number 2 किनका था? Let's read this first. Case number 2 was with Sana, I think. Yes. A new experimental drug for treating a rare disease is available, but its long-term effects are unknown. The drug has shown promising result in the preliminary trial, but it comes with significant risks. अब दोबारा अगर हम देखें तो इधर ethical dilemma क्या था? Sana, would you like to contribute, please? जी डॉक्टर नूर, थोड़ा बहुत मुझे जो समझ आया उसमें एथिकल डायलेमा इज दिस एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ड्रग which is actually Yes. under experiment, is not time tested. So तो इसके मुझे ये long समझ term आया. effects नहीं है ना. हाँ, ethical dilemma यही है. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. ठीक है.
अच्छा, हाँ फिर इसमें दूसरी बात ये थी कि हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होंगी। तो ये जो रेयर डिजीज है, इसके बारे में हमें तो वैसे भी कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना होगा। ये जो ड्रग है, इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मेरे नोट्स तो नहीं नजर आ रहे तुम्हें? मैडम मुझे फिलहाल जो सामने वही नजर आ रहा है। सही और कर रही हो, सही है। एनालाइज आउटकम्स में क्या होगा, वही वेट कर लोगे कि अच्छा इसके नॉन बेनिफिट्स और इसके पुराने जो रिस्क है एक्चुअली मैडम, इसके नॉन वो हैं कि बेनिफिट्स नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो भी थोड़ा सा ट्रायल किया था, उसमें इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट नजर आए थे। तो ठीक है। सीम्स के रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग होंगे। हम्म मुझे नहीं पता इसके ठीक बारे है। में क्या बोलना है। हाँ नहीं, तो इसके रिजल्ट्स यानी कि आपने वे इन करना ना। आप बेसिकली अगर ये एक न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और आप किसी पेशेंट से डिस्कस करें रिगार्डिंग टेकिंग एन इन्फॉर्म हम्म कॉन्सेप्ट, तो आपको हम्म यही पता होगे ना कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिस्क अभी नोन क्या हैं, और अभी ये फैक्टर अभी अननोन है, आप उसके ऊपर ओपन कर दोगे। ठीक है। ठीक है ना। और अब पेशेंट्स को आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, नाउ यू कैन डिसाइड एंड दे कैन डिसाइड ऑन देयर मैक्सिमाइज व्हाट द चॉइस विच मैक्सिमाइज देयर वेलबींग। हो सकता है कि उनके लिए प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम्म नॉट ट्राइंग अ ड्रग। वो तो उनकी चॉइस है ना। मगर आप हम्म इसको करेंगे, और आप इसमें आपके इश्यूज क्या होते हैं इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट में, या कि जब आपने एक्सप्लेन करना हो, यू नीड टू रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी। तो आपकी ऑटोनॉमी, एथिकल यस। कंसिडरेशन यहाँ पे दूसरी आ गई कि आपने उसको रिस्पेक्ट करना है। और फिर आप हम्म उसकी डिसीजन लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर और रिव्यू रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि अगले केस के लिए आपके पास होमवर्क डन हो। ठीक, ठीक है। सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज a case. A healthcare organization is developing a policy for allocating limited funding between preventive health program and treatment of chronic illnesses. The funding is limited and both areas are important. So इधर किनकी बारी थी? थर्ड में मैडम कौन थे? डॉक्टर सारा की। डॉक्टर सारा की। जी। डॉक्टर मैडम सारा ये जो इधर नहीं? इन सिनेरियो 3 अच्छा द हाँ ठीक है। जी जी। प्रॉब्लम इज बेसिकली ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। Healthcare organization is developing a policy और resource यस allocation about policy about resource allocation है। ठीक है, सही यस है। मैडम, क्योंकि इसमें हमें फंडिंग को बेसिकली एलोकेट करना है, डिसाइड करना है कि यस प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाएं या क्रॉनिक इलनेसेस की तरफ जाएं। ठीक है। ठीक है। सो द प्रॉब्लम प्राइमरीली विल बी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, राइट। ठीक है। और उसके बाद इसकी इम्प्लीकेशन में जैसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वी हैव, नहीं तो बिकॉज अब इट इज आपने डिसाइड करना है, यू आर द मेन पर्सन जो कि उन्होंने अपॉइंट किया है। व्हाट वुड यू यस डू, यस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड यू गैदर? मैडम ऑलरेडी we have the information because it is not specifically कोई disease mentioned नहीं है, तो we know that preventive health should be prioritized over the chronic illnesses when we see in the long term outcomes. So ठीक है। इधर हम ठीक जो है। है प्रिवेंटिव हेल्थ को ज्यादा रीअलोकेट करेंगे फंडिंग एज कम्पेयर टू क्रॉनिक इलनेसेस को, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ दीज बोथ द सिनेरियोज। ठीक है। अब देखो ना, प्रिवेंटिव हेल्थ तो उन लोगों पे फोकस करेगी जिनमें डिजीज है ही नहीं, यस मैडम। और जिनको डिजीज की ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक इलनेसेस, उनके ऊपर हम फंड नहीं लगा रहे, तो हम क्या करें इसमें? नो मैडम, हम लगाएंगे फंड, लेकिन हम क्या करेंगे, वील सेट अ मार्जिन। यानी फॉर सपोज इफ वी हैव 100% ऑफ फंडिंग, we can allocate up to 65 to 70% to the programs which are for the benefit of the preventive health diseases, and 30 to 35% should be allocated for the treatment of the chronic illnesses. There is reason behind that. Chronic illnesses को हम funding के alternates से भी cover up कर सकते हैं. For example, there are many of the chronic illnesses like diabetes, hypertension can also be controlled on the basis of lifestyle modification and many other things which can be counseled by the doctors. ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग उनको पूरा बजट पूरा फंडिंग देनी चाहिए एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ऑल्सो, because it will lead to the decrease in the incidence of the preventive diseases. So what are the other ethical constraints या considerations you would like to consider?
Ma'am, in this scenario, we need to do proper counseling of the of medics and paramedics who are dealing with the chronic illness, who are dealing with the patients of chronic illnesses. आप अभी पॉलिसी बना रहे हैं, आप यू आर द पॉलिसी मेकर, तो आपने उधर पॉलिसीज में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है? हमारे एथिक्स के डिफरेंट है ना, क्या क्या है, हमारी ऑटोनॉमी है और क्या क्या है? हम मैडम, इक्विटेबल रखेंगे। इक्विटी का प्रिंसिपल हम अप्लाई यस, करेंगे, इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। यस एग्जैक्टली मैडम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हेयर कि अगर हम यूटिलिटी रख रहे हैं और एक पॉलिसी बना रहे हैं तो इट शुड बी इक्विटेबल, यस इक्विटेबली एक्सेसिबल टू एवरी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, और किसी माइनॉरिटी का वो राइट खत्म ना हो इसमें कि हमने इसको नहीं देना। बेशक वो अगर हम आपने जिस तरह अपना कोटा बना लिया है, डिसाइड कर लिया है कि प्रिवेंटिव पे इतना परसेंट करना है बेस्ड ऑन द फैक्ट और क्रॉनिक पे इतना करना है, वो आपके ऊपर है। और सही। ये डिजीज ये कंटेक्सचुअल है, जिस तरह हमारी सब कॉन्टिनेंट में डायबिटीज इतना प्रेवेलेंट है, तो हो सकता है कि हम ज्यादा अपने फंड्स ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में करें, और प्रिवेंशन में वेस्टर्न में जहाँ पे डायबिटीज की इतनी प्रिवेलेंस नहीं है, दे कैन वर्क ऑन द प्रिवेंटिव पॉलिसीज। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना ऑफ योर जगह और सिचुएशन, ये भी यहाँ पे बड़ा पॉलिसी मेकिंग में फर्क आता है कि राइट उनका राइट। कॉन्टेक्स्ट फर्क होता है और आपने इस तरह करना होता है। थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट। एंड डॉक्टर सुमेरा, लास्टली आपका सिनेरियो पढ़ रही हूँ मैम। A 70-year-old patient with terminal cancer is undergoing treatment. The patient's family requests that the doctor continue aggressive treatment despite its limited efficacy and significant side effect, as they believe it offers hope. ये clinical decision making का है, और ये मैडम ने ऑलरेडी Exactly. पहले किया था, मगर लेट्स वॉक, मैडम हमें वॉक थ्रू करा दें एक दफा ये सारे इसमें से। हाँ, इसमें वही क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का है। इसमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स का अगर हम देखें तो वो पेशेंट खुद है, उसकी फैमिली होगी, और जो हॉस्पिटल है वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, वो खुद फंड कर रहे हैं या गवर्नमेंट फंडेड है। तो ये हमें इसमें ये इम्पोर्टेंट होगा, और जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके आउटकम, जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो किस किस तरह के साइड इफेक्ट्स है। कि ऐसा तो नहीं कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट से बहुत एक्सेसिव कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जिसको बीवी फैमिली कंसिडर ना कर रही हो, और फैमिली को ये है कि नहीं लाइफ इंक्रीज हो। तो पेशेंट की जो हेल्थ उससे हो रही है, उसको भी इम्पोर्टेंट है देखना कि किस तरह की उसकी आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इस ट्रीटमेंट के थ्रू। तो इन सबको देखते हुए फिर इसके अंदर डिसीजन होगा। अगर गवर्नमेंट फंडेड नहीं है और खुद कर रहे हैं पे वो हर ट्रीटमेंट की, कोई प्राइवेट सेटअप है जहाँ पे किसी और पेशेंट के लिए कोई इस तरह की चीज, जैसे वेंटिलेटर का एग्जाम्पल था, इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा है, अगर खुद फंड कर रहे हैं और कोई इस तरह के आउटकम्स नहीं है हेल्थ के ऊपर, तो मेरे ख्याल से इट दे कैन गो अहेड विद इट। तो ये सब डेटा परफेक्ट, होगा तो ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। perfectly तो said, perfectly said. I hope, थैंक यू। thank you so much, Dr. Sumera, very rightly discussed. और I hope कि हमारे लिए अब यूटिलिटेरियनिज्म इतना मुश्किल नहीं होगा to assess and reflect after today's discussion. So again, conclusion and key takeaways: utilitarianism principles, they focus on maximizing happiness for a greatest number of patients. Then there are ethical considerations that we need to do. Real world application हमारी policy making में है, clinical health decision में आ जाती है। We can measure happiness depending कि हमारा क्या है, long term and short term हमने लाजमी देखना है happiness कहाँ पे imply हो रही है। Even then there are different critiques. This is just a little chart that shows utilitarianism और other theories का आप लोगों के लिए कि I thought कि अब खत्म हो रहा है आपका moral theories का, तो एक आपको एक combine मिल जाना चाहिए, and just a reference list. सही है? Any questions for today? और ये मैं स्लाइड अभी आपको PDF करके अभी मैं शेयर कर देती हूँ for your future record. Any comments? Anything which you have learned? Give me my feedback so that I can further work on it. And I usually ask for stars and a wish. कोई स्टार बना दें, कोई विश कर दें। आई थिंक आई रियली एंजॉयड योर टीचिंग स्टाइल क्योंकि टॉपिक इतना ड्राई है, तो आई लाइक द यूज ऑफ डिफरेंट मेंटीमीटर में, यू टुक अस टू द मेंटीमीटर, यू हैड अ यूट्यूब की वीडियो, दो वी डिडंट सी इट बट आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल सिनेरियोज की एक्टिविटी। तो एक बहुत बोरिंग एक टॉपिक हो सकता है जिसको आपने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। तो आई थिंक आई गिव यू 5 stars, 6 stars, I don't know, a lot of stars Thank for you that. so much, And I Dr. wish, Sumera. मैडम, and I hope to see five you stars, more. No, I hope 5 to see stars you from my more side. for our bioethics course.
थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था ना, मुझे इसको समझने में इतना टाइम लगा था कि आई रियली विश्ड जब मुझे ये मुनीब ने इनवाइट किया तो आई वाज थिंकिंग अच्छा हाउ टू मेक इट इजी एंड डाइजेस्टेबल। बेसिकली द टर्म इज डाइजेस्टेबल, कि ये डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो वो आई एम ग्लैड कि अगर आप लोगों को आया है। और मैं ये सोच रही थी पता नहीं ये 6 बजे ही ना खत्म हो जाए, मगर वी आर फिनिशिंग क्वाइट ऑन टाइम। And I wish you all the best. Thank you so much, Sara Sadaf. It was really nice meeting you all. डॉक्टर सुमेरा से तो मेरी वैसी ही हेलो हाय चलती रहती है, तो इनके साथ तो मेरा है। आप लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। And any problem, any query in the future, I'm always here. आप contact कर सकते हैं। I'm giving you my WhatsApp number, क्योंकि मैं स्लाइड शेयर करनी थी इसलिए मैंने आगे नहीं डाला जी। तो इंशाल्लाह we'll be meeting again, hopefully somewhere in the future. Dr. Muneeb, we are all done. Thank you so So much, Dr. Gurikaran. We can conclude now. yes, I wish you all the best, everyone. And any query you can directly WhatsApp me, and I would be here at the only at WhatsApp away. And Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz, Dr. Gurikaran. Thank you so much again. Thank you.